Hello friends, welcome to the video series of Artificial Intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today we are going to learn ontology in knowledge representations. So let's get started. In today's lesson we are going to discuss ontology. Now first question is that what is ontology? Ontology is in computer science and information science, and ontology encompasses are representations or formal naming and definitions of categories, properties and relations between the concepts. Whatever we are going to represent our knowledge in our database or in our artificial intelligence machine, we required the representation scheme, or we also required some formal naming definitions and categories. So this is that concept is nothing about the ontology. It is a branch of computer science where we deal with the representations of knowledge or informations into a machines. The question is ontology. Ontology मीन्स व्हाट? ontology का मतलब जो होता है फिलोसॉफिकल वे में अगर हम देखें तो हमारा जो भी डेटा या फिर जो भी हम इंफॉर्मेशंस स्टोर करना चाहते हैं या फिर हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशंस आप किस लेवल पे या किस डिटेलिंग से या उसको किस कैटेगरी से आप उसको स्टोर करोगे, तो वो चीज़ें जो आती है आपके नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस के अंडर में। इसका जो फिलोसॉफिकल नेम है इसको हम बोलते हैं ontology. ontology एक फिलोसॉफिकल टर्म है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज, डिफरेंट फॉर्मल नेमिंग हो गया, कन्वेंशंस हो गया, किस तरीके से इवेंट्स आते हैं, किस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड कंसेप्ट्स है, डेटा है, एंटिटीज है, दैट डेटा आर stored in our machines और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, ये सारी इंफॉर्मेशन को अगर हमें स्टोर करना है तो हम ontology का यूज करते हैं. The word itself and its origin. The word ontology comes from the two Greek word. First one is onto, that is also called as existence or being real. Okay, we will explain what is the onto and what is the logia. Okay, so second word is logia. It's nothing about the science or a study. So that means ontology is nothing about the study of existence or a being real. The word is used in two settings. First one, ontology is used in both philosophical and non-philosophical context. We are not concentrated on the philosophical word. We are going to concentrate on non-philosophical context. That is in a computer science. Here we are learning the knowledge representations. That why we use ontology in context of knowledge representations. What is ontology in regards of philosophy? Ontology is a term used by philosophers to mean the most essential existence in the universe. Philosophical या जो philosophers होते हैं उनका जो मानना होता है कि for example we have a life. इंसानों के अंदर में एक लाइफ है, एक आत्मा है जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग वर्क करता है, तो दैट इज द फिलोसॉफिकल वर्ड. हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में जो आत्मा है, अब आत्मा के अंदर में हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर में जो लाइफ है, जो लाइफ के अंदर में अगर हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसमें डिटेलिंग क्या है, उसको किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, ये सारी कैटेगरीज को हमें डिस्कवर करना रहा. तो दैट इज नथिंग अबाउट द ontology. ये philosophers का कहना है. Parmenides was among the first to propose the ontological characterizations of fundamental nature of reality. मतलब परमेडिस ने क्या किया था, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ontology concepts को डिस्कवर किया था और उन्होंने प्रपोज किया था जिसमें आप जितने भी टर्म्स है या फिर जितने भी आप किसी भी कैटेगरी या फिर किसी भी कंसेप्ट के बारे में हम डिटेलिंग करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो. तो दैट इज नथिंग अबाउट द फिलोसॉफिकल वर्ड. और फिलोसॉफी एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको फिलोसॉफी है ये हमारी. So what is an ontology in regards to a philosophy? To provide the definitive and exhaustive classifications of entities in all spheres of being. मतलब हमारे पास में जो भी हमारे आजू बाजू में जो कुछ भी इन्वायरमेंट में है, हम उसको किस तरीके से फिलोसॉफिकल वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सब्सटेंस. ओके, सब्सटेंस में अगर हम उसको क्लासीफाई करते हैं तो वी गेट द मटेरियल्स और इमटेरियल्स. सो इमटेरियल्स में स्पिरिट्स आती है, मटेरियल्स में अगर हम देखे जाए तो हमारी बॉडी आती है. सो वी हैव अ बॉडी. एनिमेट, inanimated,
ओके, तो यहाँ पे इनएनिमेटेड मतलब जिसमें लाइफ नहीं है तो वो मिनरल्स में आएगा। बॉडी कुछ हमारे जैसे कि जिसमें लाइफ है, जिसमें हम एनिमेटेड बोलेंगे, जिसमें लिविंग थिंग्स आती है उनको सेंसिटिविटी होगी, इनसेंसिटिव होगा जिसको हम प्लांट बोलते हैं। सेंसिटिव मटेरियल्स में हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स में कुछ रिलेशनशिप्स है तो वो ह्यूमन बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी डेटा है हम उसको किस तरीके से हम कैटेगराइज कर रहे हैं, क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज को, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। दैट इज नथिंग अबाउट अवर ontology. What is an ontology in computer science? That is knowledge representation in formal way. मतलब जो हमारा ontology है हम knowledge representation में किस तरीके से यूज करेंगे, a hierarchy of concepts within a domain. मतलब हम जिस भी डोमेन की इंफॉर्मेशन या नॉलेज को हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज बेस के अंदर में स्टोर करना होगा तो हमें उस कंसेप्ट की हायरार्की क्रिएट करनी होगी ताकि हम उसको प्रॉपर्ली स्टोर कर पाए। A shared vocabulary to denote the types, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज, उनके नेमिंग कन्वेंशंस, ये सारी चीजें यहाँ पे लगेगी। प्रॉपर्टीज एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ दोज कंसेप्ट, जितने भी हमारे पास में एंटिटीज आएगी, जितने भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स आएंगे, उनके बीच की जो रिलेशनशिप्स है उन सबको हमें ऑन्टोलॉजी के थ्रू या फिर ऑन्टोलॉजी के कंसेप्ट के अंदर में हमें वो रिप्रेजेंट करना होगा। सो दिस इज नथिंग अबाउट द ऑन्टोलॉजी इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस. That is, what is an ontology in computer science? An ontology is a specification of conceptualizations that is designed for reuse across multiple applications and implementations. A specification conceptualization is written formal descriptions of a sets of concepts and relationships in a domain of interest. Peter Karp 2000. एक छोटा सा टर्म है, the arrangement of kind of things into a types and categories with a well defined structure. That is Passin in 2004. Simply अगर हमारे पास में अगर नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखें तो हमारे पास में जो भी नॉलेज होता है हम किसी डेटाबेस या फिर नॉलेज बेस के अंदर में वो डेटा हम इंसर्ट करते हैं तो हमें उस नॉलेज को प्रॉपर्ली अरेंजमेंट करना है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में. सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज ontology. Ontology versus knowledge base. The artificial intelligence literature contains many definitions of ontology. Many of these contradict one another, and ontology together with the sets of individual instances of a class constitute a knowledge base. In reality, there are a fine line where the ontology ends with the knowledge base begins. We have to differentiate what is ontology and knowledge base. In ontology, it's a philosophical term where we are going to extract the data or knowledge or informations and we have to set it into a well defined structure. ओके, सो दैट इज नथिंग अबाउट द ontology. ontology में होता क्या है कि आपका जो भी नॉलेज है उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके किस तरीके से आप रखोगे. नॉलेज बेस के अंदर में क्या होता है कि हम जब भी डेटा किसी मशीन्स के अंदर में स्टोर करना चाहते हो तो अगेन हमें यहाँ पे डिफरेंट कैटेगराइजेशंस करना होता है, क्लासिफिकेशंस करना होता है, ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, हायरार्की प्लस रिलेशनशिप्स, ऑल दीज इंफॉर्मेशंस हमें स्टोर करनी होती है. तो ontology एंड नॉलेज बेस के बीच में डिफरेंस बस इतना ही है. तो it's a philosophical word and knowledge base is a real term word जहां पे हम नॉलेज को डेटाबेस में स्टोर करेंगे. Not all would agree on the following. An ontology is a very roughly a formal representations of domain knowledge. An ontology is very roughly a formal representations of domain knowledge. It is an abstract entity. Yes. So ontology क्या होता है कि आप formal representations करते हो डोमेन नॉलेज का. So it is an abstract एंटिटी. यहाँ पे आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी करोगे आपको सामने में समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट. So it defines the vocabulary for the domain and the relationship between the concept. But an ontology says nothing about how the knowledge is stored, a physical file in a database or in some other forms, or indeed how the knowledge can be accessed. The knowledge base is a physical artifact. It is the database, the repository of informations that can be accessed and manipulated in some predefined fashions. The knowledge in the knowledge base can said to be modeled according to the ontology. मतलब this is the abstract term. Ontology is a abstract term where we have to represent the data, but knowledge is a physical term where we are going to store the knowledge into a database.
Types of ontology. We have three types of ontology, that is upper level ontology, general ontology, and domain specific ontology. Okay, now what is upper level ontology? We will explain with the help of some examples. Let's suppose we have some classifications, or we have some informations. Okay, so that roughly informations, that top level informations are stored, top level categories are called as upper level categories or upper level ontologies. Okay, generalized ontologies, which is in between this, and domain specific ontology means the informations which is regarded to only a domain, so that is called as domain specific ontology or domain specific knowledge. Upper ontology, the upper ontology also called as top level ontology or foundation ontology, which describe the most general concept that are same across all knowledge domain. For example, अगर मैं कहीं किसी informations की बात करूँ तो सभी टाइप के डोमेन्स में डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज होते हैं, और वो सभी डोमेन्स में सेम टाइप के अगर नॉलेज रखते हैं तो दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अपर लेवल ontology. Now talking about the general ontologies. General ontologies represent the knowledge at the intermediate level of detail, independently of the specific task, theories and the time and space. मतलब आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें जो इंटरमीडिएट लेवल्स की जो भी डिटेल्स होगी, दैट कम्स अंडर द जनरल ontology. डोमेन लेवल ontologies, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक डोमेन, हमें किसी स्पेसिफिक डोमेन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर डिटेलिंग करना है, सो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ detailing or representation is called as domain ontologies. Example, if we are gathering the knowledge or extracting the knowledge from the डॉक्टर्स के ब्रेन में जो नॉलेज है हमें वो एक्सट्रैक्ट करके अगर नॉलेज बेस के अंदर में स्टोर करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक उस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास में तीन टाइप के लेवल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज अपर लेवल, सेकंड वन इज जनरल लेवल, थर्ड वन इज डोमेन लेवल. डोमेन लेवल मतलब उस स्पेसिफिक रेफरेंस या फिर उस स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हमें जो नॉलेज लगने वाला है उसको किस तरीके से हम डेवलप करेंगे, उसका फॉर्मल डेफिनेशंस किस तरीके से करेंगे, रिप्रेजेंटेशंस किस तरीके से करेंगे, दैट इज. एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जोग्राफिकल कैटेगरीज. अगर मैं किसी जोग्राफिकल कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, एरिया, पॉइंट, लाइन. ओके, अगर मैं एरिया स्पेसिफिक बात करूंगा, सो जोग्राफिकल फीचर्स के अंदर में जो एरिया, पॉइंट एंड लाइन है, सो दीज आर द कॉल्ड एज टॉप लेवल और अपर लेवल ontology. These are called as top level or upper level ontology. Okay, in specific or domain level ontologies के बारे में बात करूँ तो area, that will contain block, terrain, country, wetland, mountains. So according to area we have some these specific types. Okay, if we are talking about the terrain, एक स्पेसिफिक डोमेन मतलब टेरेन के ऊपर की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो यहाँ पे टेरेन की भी कुछ डिटेल्स निकलेगी. सो दैट टाइप ऑफ कॉल्ड एज डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस. Point in a point we have a dam, town, bridge, airstrips, heliport. So these are the different general level ontologies. अगर मैं heliport की बात करूंगा तो heliport domain specific ontology हो जाएगी, domain specific knowledge हो जाएगा. So इसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल चलेगा. सिमिलर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताऊं तो हमारे पास में एजुकेशन सिस्टम है. एजुकेशन सिस्टम इज नथिंग अबाउट द टॉप लेवल. अब इसमें एजुकेशन सिस्टम्स में बहुत सारे स्ट्रीम्स चलती है. फॉर एग्जाम्पल आपका इंजीनियरिंग आ गया, मेडिकल आ गया, आपका बीएससी, बीकॉम. सो दीज आर द अपर लेवल और टॉप लेवल ontologies. यहाँ पे आपकी टॉप लेवल्स की इंफॉर्मेशन होती है जिससे कि आप उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब आते हैं हम जनरल लेवल्स में. जनरल लेवल में अगर हम आएंगे तो लेट्स सपोज वी हैव कंसिडरिंग द इंजीनियरिंग फील्ड. इन इंजीनियरिंग फील्ड वी हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वी हैव अ फर्स्ट ईयर, वी हैव ईटीसी, इलेक्ट्रिकल. सो दीज आर द different branch, so which represent the detailed knowledge, some detailed knowledge of that particular field. Okay, if I am talking about the particular field, that is computer science of engineering, तो कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर में भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है. फॉर एग्जांपल वी आर लर्निंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, वी लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वी हैव अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में डिटेलिंग करूंगा तो और भी बहुत सारे कंसेप्ट है जिसमें आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नॉर्मलाइजेशन है. सो ये बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं. तो यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को
थ्री कैटेगरीज और थ्री ऑन्टोलॉजीज में डिवाइडेड किया गया है, एक टॉप लेवल, एक जनरल लेवल और एक है डोमेन स्पेसिफिक। मतलब कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन के बारे में, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो दैट इज द डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। ओके, अब इसका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में वर्क क्या है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में सिमिलरली हम डेटा को ही रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम नॉलेज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी हमारा नॉलेज होता है वो उसमें भी कैटेगराइज कर सकते हैं हम टॉप लेवल, जनरल लेवल एंड डोमेन स्पेसिफिक लेवल। सो ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर हमें किसी नॉलेज बेस को डेवलप करना है और उसमें नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? इट डिस्क्राइब द ontology. So in ontology we also have to represent the relationships between the different objects and entities. Let's suppose we have an animal eats food. Okay, person John ate cakes. So this is nothing about the relationships of ontology. Ontology एक आपका philosophical concept है जिसमें आपकी abstract informations आप detailing करते हो, जिसमें आप representations, naming conventions, entities, concepts, ऑब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप्स, इंटर रिलेशनशिप्स, हायरार्की, उन सब की डिटेल्स होती है। एंड ऑन्टोलॉजी एक फॉर्मल डेफिनेशन है। एंड अगर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए, जब हम नॉलेज रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस में हमें इन्हीं सब चीजों की जरूरत होती है। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के समय में हमें टॉप लेवल इंफॉर्मेशंस, मिडिल लेवल इंफॉर्मेशंस, डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस, ये भी हमें डिटेलिंग करनी होती है। जब भी हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें हमारे पास में जो नॉलेज होगा उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट type of study is called as ontology. Okay, that's all from today's topic. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.